سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور آپ ہمارے باتوں کا توفیق عمل نصیب کرے۔ یقیناً حضور علیہ السلام کا ذکر اہل ایمان کے لیے باعث تسکین ہے۔ جب کسی کے لبوں سے وہ اپنے آقا مولا کا نام اسم گرامی سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت بڑھنا چلے جاتی ہے، اور ایسا ہو نہیں ہونا میرے وجود کا ذکر ہے اتنا ہی میٹھا کہ جب کوئی محمود علیہ السلام کے ذکر اور ان کی یادوں میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے ایمان کی قلبی کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کے مختصر سے وقت میں چند پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے آپ کو قابل باتوں پر توفیق کے اندر نصیب کرے۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، معاشرے کی حالت اتنی دردناک تھی کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا باپ کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بھری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑا کھود کے دھکا دے کر اوپر پٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا، اتنا سفاک تھا تو اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سخت تھی کہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا بتا سکے تو اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جا رہی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا اور حضور میں کے بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ کو بھی رات کو بھی میری فاطمہ کو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے اور یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیے آج میں اور آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بھری بات کہیں، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا نکاح ہے۔ یوں ہی تو نہیں بولا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پر بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا۔ جماعت صاحب بھائی فیکٹریوں میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یہ باپ کو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی کو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ ان کے سینے میں اتنا پھوٹ پھوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے نام پر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور اسلام کی ولادت سے اہل عرب کو بیٹیوں کا پیار نصیب ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک ابشیہ ریاض عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگا۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاشی کی سیاق کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دوں۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانے والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانے والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المؤمنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا، یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے
ان کی माँ को जन्नत अता करे। कहाँ बेटियां बाई से शर्म नमवार समझी जाती थी, कहाँ बेटियां ही दुखूल जन्नत का सबब करार पाई। खुद फरमाया जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां या 2 बहनें अता की, फिर उसने उनकी परवरिश की, उनकी तरबियत की, यहाँ तक कि उनका निकाह कर दिया और फिर पीछे से भी उसने खैर खबर रखी। तो मेरे हुजूर इतना खुशकिस्मत शख्स है, कल क़यामत के दिन मेरे इतने करीब होगा जितनी ये 2 दुनिया आपस में करीब। ये एहसास, ये तकरीब किसको मिलेगी? जिसकी बेटियों से वफा की होगी। बहनें क्या होगी? मैं ये ज़माने को मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने आकर बताया। आप जानते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम की ना तो सगी बहन थी और ना तो सगा भाई। मेरे हुजूर दुर्रे यतीम हैं, लेकिन जब रज़ात का शर्त अता करते हुए मेरे हुजूर हज़रत हलीमा साहब सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ तशरीफ़ ले गए, तो आप जानते हैं कि उनकी एक बेटी थी जिनका नाम शीमा या शैमा बताया जाता है। तो रिश्ते में हुजूर अलैहिस्सलाम की रज़ाई बहन लगी। कबीला बनु साद के रवाज के मुताबिक शाम को जब माएँ खाना पकाने लगती तो बहनें अपने भाई गोद में उठाकर बाहर खुले मैदान में ले आती। हर बहन की गोद में उसका भाई होता और वो अपने भाई के हुस्न के कसीदे पढ़ रही होती। अगर किसी के भाई का रंग काला होता तो वो कहती रंग काला है तो क्या हुआ, मेरे भाई के नकूश देखो कितने खूबसूरत है, इसकी उठी हुई नाक, इसकी जीभ जैसी खूबसूरत आंखें तो देखो कितनी प्यारी हैं। तो वो नकूश को मयारे हुस्न करार देती। और अगर किसी के भाई का रंग गोरा चिट्टा होता तो वो कहती जनाब रंग नहीं तो कुछ नहीं, हुस्न तो होता ही सारा रंगत में है, मेरे भाई का रंग देखो कितना गोरा चिट्टा है। ये बहस मुबासा चल रहा होता और कोई बहन भी हाथ मानने को तैयार न होती। इतने में एकदम से हजरत शीमा अपना वीर मोहम्मद उठा के देखा और कहते सर मेरे वीर का मुकाबला भी तो करो ना। वो कहती नहीं शीमा तेरे वीर का मुकाबला तो नहीं ना, तेरा तो सारों का ही सरदार लगता है। तो में आता हजरत शीमा का सर फख्र से बुलंद हो जाता और वो हुजूर इस्लाम को सीने से चमका लेती और दुआ देती रब्बाना आबुकिलाना मुहम्मदा, इंशाअल्लाह मेरे वीर मोहम्मद को नसर दा। आज मैं देख रही हूँ बच्चों का सरदार है, कल अपनी आंखों से देखूं जवानों का भी सरदार है। जिंदगी के लैलो नहार गुजरते गए, हजरत शीमा की शादी हो। मदनी दौर की कहानी है। इत्तेफाक ये हुआ कि जिस कबीले में हजरत शीमा की शादी हुई, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा की लड़ाई और जंग उसी कबीले के साथ। उनके कुछ बंदे कत्ल कर दिए और कुछ को कैदी बनाकर सहाबा अपने साथ ले आए। अरब के रवाज के मुताबिक कैदियों को छुड़ाने के लिए कौम के सरदार फिदिया और फंड इकट्ठा करने के लिए निकले। हर दरवाजे पे दस्तक देते और फंड मांगते। चलते चलते हजरत शीमा के दरवाजे पर भी पहुंच गए। दस्तक दी तो पूछा कौन? कहा कबीले के सरदार हैं, फंड इकट्ठा कर रहे हैं, तुम भी अपना हिस्सा डालो। पूछा ये फंड किसने इकट्ठा हो, ये रकम की जमा की जा रही? तो कहा मदीने में एक शख्स है, इद्दाई नबूवत रखता है, उसने हमारे लोग पकड़ लिए हैं, हमने अपने कैदी छुड़ाने हैं। तो पूछा कि उसका नाम क्या है? किसी की जुबान से बेसाख्ता निकला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अरसे के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम सुना तो आंखों में आंसू आ गए। कहा उन्होंने तुम्हारे बंदे पकड़े हैं? कहा हाँ उन्होंने हमारे लोग पकड़े हैं। कहा फिर फंड इकट्ठा करना छोड़ो, सिर्फ मुझे साथ ले चलो। कहा तुम क्या करोगे? कहा तुम्हारे कैदी छुड़ा के लाऊंगी। कहा क्या तुम उनको जानती हो? कहा हाँ हाँ तुम्हें नहीं पता, वो मेरे बचपन के वीर और भाई लगते हैं, मैं तुम्हारे कैदी छुड़ा के दिखाऊंगी। हजरत शीमा कबीले के सरदारों को साथ लिया और हुजूर इस्लाम के खैमा नूरी की तरफ सफर शुरू किया। ये वो वक्त था जब अदब की आयात नाज़िल हो चुकी थी। खबरदार मेरे रसूल की आवाज़ से आवाज़ भी ऊंची ना करना, वरना जिंदगी की सारी कमाई खारत करके रखूंगा। सहाबा नंगी तलवारों से दरे हबीब पे पहरा दे रहे थे। हजरत शीमा इस ख्याल से कि मैं तो अपने भाई को मिलने जा रही हूँ, जब आगे बढ़ना चाहा तो पहरेदार से तलवारें सौंप दी। रुक जा देहाती औरत, जानती नहीं आगे ऊंचाई रसूल है, आगे तो बगैर इजाजत के जिब्रील नहीं जा सकते। रिवायत में आता है जब रास्ता रोक दिया गया, तलवारें सौंप दी गई, तो हजरत शीमा ने हाथ से तलवार को झटक के कहा खल्लू सबीली वालमु अना उख्तु नबीयिकुम, कहा मेरी राहें छोड़ दो, जानते नहीं मैं तुम्हारे नबी की बाजी को बहन लगती हूँ। ये आवाज़ कानों में पड़ी तो सहाबा की आंखों पर पलकों की चिलमने आ गई।
निगाहें नीची कर ली, तलवारें पीछे हटा ली। हजरत शीमा पूरे प्रोटोकॉल से हुजूर अलैहिस्सलाम के खैमा नूरी में दाखिल हुई। मेरे हुजूर जब दूर से बहन को आते देखा, हुजूर उठकर इस्तकबाल किया, मरहबा खुशामदीद पेश करते हुए फरमाया, मेरी बहन आज किधर को आना हुआ? अर्ज़ की, हुजूर आपके बंदों ने हमारे कुछ लोग पकड़ लिए हैं, मैं उन कैदियों को छुड़ाने के लिए आई हूँ। सुनो भाइयों, अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया? हुजूर फरमाया, मेरी बहन तूने आने की ज़हमत भी गवारा की, तू घर बैठे भी पैगाम भेज देती, मैं मोहम्मद तेरे कहने पे ही सारों को छोड़ देता। ज़माने को तुमने बताया दरवाजे पर बहन का आना कितना मौका, फिर चंद जोड़े, कुछ जोड़े, बहुत सारा साजो सामान, और मेरे हुजूर खुद बहन को छोड़ने के लिए दरवाजे तक तशरीफ ले आए। सहाबा निगाहें नीची किए, महबूब अलैहिस्सलाम के अदब में खड़े थे। हुजूर मैं कि सहाबा में जब भी कैदी छोड़ा करता हूँ, पहले तुमसे मुशावरत किया करता हूँ, आज पहला मौका है, मैं कैदी भी छोड़ रहा हूँ और मैंने मशवरा भी नहीं किया है। अर्ज़ की है बंदा नवाज, आप मालिक कुल कायनात हैं, आप जो चाहें करें। हम कौन होते हैं भला दरमियान में मशवरा देने वाले? लेकिन हुजूर जी इतना तो बताइए, आज कौन सी खास बात थी कि आपने मशवरा भी ज़रूरी नहीं समझा? हुजूर मैं सहाबा, आज मेरे दरवाजे पर मेरी बहन आती थी, और जब बहनें दरवाजे पे आ जाए, अल्लाह के रसूल उन्हें खाली नहीं छोड़ा करता। ज़माने को बहन का रिश्ता मेरे महबूब इस्लाम की तहरीर से मिला है। माँ बाप की क्या अहमियत है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में बताती है। मेरे हुजूर तशरीफ फरमा थे, दूर से एक बूढ़ी खातून को अपनी तरफ आते देखा। आका करीम अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ी तो मेरे महबूब उठ खड़े हुए, मेरी माँ पुकारते हुए और दौड़ लगाते हुए उनके करीब पहुँचे। फिर कंधों से वो चादर उतार कर नीचे ज़मीन पर बिछा दी, जिसे मैं और आप कायनात का कीमती असासा समझते हैं। अपनी वालिदा को उस चादर के ऊपर बिठाया, कान लगाकर घंटों उनकी बातें सुनी, और जब वो बूढ़ी खातून खुद उठकर वापस जाने लगी तो किसी ने रावी से पूछ लिया, ये आने वाली खुशकिस्मत खातून कौन थी? कि महबूब इस्लाम ने कंधों की चादर उनके कदमों के नीचे बिछा दी, और बताने वाले ने बताया कि तुम्हें नहीं पता, यही तो हुजूर अलैहिस्सलाम की रज़ाई वालिदा हज़रत हलीमा सादिया सलाम अलैहा। सगी माँ तो सगी माँ होती है, मेरे रसूल ने तो दूध पिलाने वाली माँ को भी इज्जत अता की है। आका करीम अलैहिस्सलाम एक दिन सहाबा को नमाज पढ़ाने आए, ताहते निगाह सहाबा ने उठकर हुजूर का इस्तकबाल किया, मोहब्बतों भरा ये हुजूर देखा तो छम छम आंखों से आंसू बरसने लगे। एक ठंडी आह भरी और क्या फरमाया, लौ आदरत वालिदैया औ अहदहुमा, काश आज मेरे माँ बाप भी जिंदा होते या उनमें से कोई एक ही जिंदा होता, फिर मैं लोगों को नमाज इशा पढ़ा रहा होता, उसमें सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, फिर मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता, वो दरवाजे पे आती, चिल्मत सरकाती, अपने मीठे और प्यार भरे लहजे में फरमाती, इब्नी मोहम्मद, मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात को सुनो। कहा लोगों, मैं नमाज का मुसल्ला छोड़कर पहले माँ की बात को सुन लेता। ज़माने को अमलन बताया माँ का वजूद कितना होता है। यहाँ तक इरशाद करवा दिया, जिसका बाप राजी है मैं ज़मानत देता हूँ, उसका अर्श का रहमान भी राजी है, और जिसका बाप नाराज़ है उसका अर्श का रहमान भी नाराज़ है। वो तहज्जुद पढ़ता हो, दीन की तबलीग जैसे मुकद्दस फरीज़े को सर अंजाम दे रहा हो, अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो रब रहमान उसका नाराज़ है। साहिबों, बेटा मैं आपसे कहना चाहूँगा, अपने माँ बाप की रिज़ा में ज़िंदगी गुजारने का मिजाज पैदा कीजिए। ये वो बाबरकत हस्तियाँ हैं कि जिनके बारे अल्लाह ने कुरान में फरमाया, उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, इनको उफ़ तक भी ना कहना। अपने दलाइल के साथ गला फाड़ फाड़ के अपना नुक्ता नज़र मनवाने के लिए लहजा बेअदब हो जाए, ये तो बड़े दूर की बात है। कुरान में तो उफ़ तक कहने से भी मना फरमाता है। माँ बाप राज़ी हैं, रब रहमान भी राज़ी है। माँ बाप नाराज़ हैं, रब रहमान भी नाराज़ है। तो वो जब तक सिमट गया, जिस दौर में बेटी ज़बह की जा रही थी, जिस दौर में बहन जिंदा दरगोर कर दी जाती है,
जिस दौर में माँ जैसा रिश्ता भी मंडियों और बाजारों में बिक जाता था, उस दौर में बीवी की क्या हैसियत हो। जबकि आज के इस तेजीब याफ्ता दौर में भी कुछ नादान लोग बीवी को कौम का जूता ख्याल करते हैं। ये ज़माने जाहिलियत की बात है। आका करीम इस्लाम ने ज़वाजे मुताहरात के साथ जो उसने सुलूक की दास्तानें रकब की हैं, ज़माना उनकी मिसाल नहीं ला सकता। किसी को मेरे हुजूर उमैरा कह के पुकारते हैं, किसी के लिए बकरी का बच्चा ज़बह करते हैं और गोश्त के मुख्तलिफ टुकड़े उनकी सहेलियों के यहाँ बेचते हैं। हुजूर कसरत के साथ हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का जिक्र किया करते हैं। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मेरा जो उनसे रिश्ता था, एक दिन मेरी जुबान से बेसाख्ता निकल गया कि हुजूर अल्लाह ने आपको बेहतर अज़वाज अता कर दी हैं और आप अभी तक उस बूढ़ी औरत का जिक्र नहीं भूले। फरमाते हैं हुजूर के चेहरे पे जलाल आ गया और हुजूर मैं आयशा मुझे खदीजा के बारे में तकलीफ न दो। जब पूरे मक्के में मेरा इनकार किया था, एक खदीजा भी जिसने मेरा इकरार किया था। हम उसे कैसे भुला सकते हो जब ज़माना मेरी मुखालफत कर रहा था। खदीजा मेरे से मोहब्बत की दावेदार थी। फरमाते हैं मैंने हमेशा मोहब्बतों का ही इज़हार किया और यही हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा है। जब उनका वक्त आखिर करीब आया, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को भेजा और कहा बेटा जाओ जाकर हुजूर इस्लाम से चादर रहमत मांग लो। सैयदा हाज़िर खिदमत में आकर अर्ज़ की क्या से मेरी वालिदा चादर मांग रही है। हुजूर इस्लाम ने चादर भी उतार कर पेश कर दी और साथ में बेटा अपनी वालिदा से पूछो ये चादर क्या करनी है। ये कहते कहते मेरे हुजूर भी साथ तशरीफ ले आए और जो मैं खदीजा तुम्हें चादर क्या करनी है। अर्ज़ हुजूर मुझे जो बुखार है लगता यूं है कि जानलेवा साबित होगा। मेरी आरज़ू ये है कि मुझे कफन मिले तो आपकी चादर रहमत में मिले। ये हुजूर इस्लाम की सीरत का कितना बड़ा हवाला है कि बीवी आरज़ू का नहीं है। अगर मुझे शोहर की चादर में कफन मिल जाए तो ये रब के हुजूर मेरी बख्शिश की ज़मानत होगी। हुजूर इस्लाम ने चादर भी उतार कर पेश कर दी और साथ तारीख साथ जुमला इरशाद फरमाया। फरमाया खदीजा तुमने तो सिर्फ चादर मांगी है। लौ अरदनी जिल्दी लआतियतुकी, अगर तुम मुझ मोहम्मद से मेरी जिल्द भी मांगती मैं वो भी उतार के पेश कर देता। ज़माने को रिश्तों का तकद्दुस, आदाब का दर्स, जोड़ने की तालीमात, मोहब्बत भरा अंदाज ये मेरे रसूल की सीरत से नसीब हुआ है। मैं आपको दावत देना चाहूँगा बेटा जोड़ने की कोशिश कीजिए, सुलह करने का हौसला पैदा कीजिए। जहाँ बहुत सारी जो है वो असर हाज़िर की तालीम से फैज़यात हो रहे हैं, साथ में सीरत रसूल के इस पहलू को कभी मत भूलिए। मेरे बुजुर्ग की तालीमात जोड़ने वाली तालीमात है। ये मैंने चंद मिसालें उन करीबी रिश्तेदारों के बारे में दी जिसको इस्लाम ने बयान इस तरह से भी किया है। हमारे ये वो रिश्ते हैं जिनके बारे में कल तुमसे पूछा जाएगा। कबल इससे कि मुझसे और आपसे इन खूबसूरत रिश्तों का सवाल किया जाए। मैं और आप सीरत रसूल के साथ चाहे रूप में अपनी ज़िंदगी को ढालने का मिजाज पैदा करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खूबसूरत दिन लेकर आए वो रिश्तों का तकद्दुस और जोड़ने वाली तालीमात है। मैं अपने मेज़बान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतने कीमती लोगों को चंद लम्हात के लिए सीरत रसूल के उन्वान पर जमा किया। यकीनन आप लोग कीमती, आपका वक्त कीमती है। चंद लम्हों के लिए आप एक अहम और कीमती मज़मून के लिए जमा हुए। अल्लाह आप सबका आना कबूल फरमाए और मुझे और आपको सीरत रसूल के तमाम पहलुओं पर अपने आप को शामिल करके अमल से ज़िंदगी को बदलने का जज्बा